Hello students, this is my new video. In this video, we will discuss the all question based on the theory of sets. Today, we will discuss exercise number 1.4. In this chapter, all the question based on the union, intersection and subsets. पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को यूनियन, इंटरसेक्शन, सबसेट्स, इन सब की डिफिनेशन, पावर ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये सब बता चुके हैं। ये एक्सरसाइज 1.4 बेहद इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद जो डिफिनेशंस आपने पढ़ी थी वो सारे के सारे डिफिनेशन और अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट थ्रू क्वेश्चन नंबर 2। गिवन लेट equals to A and B and another set B equals to A, B, C. There are two sets given. Find out. फर्स्ट पार्ट में कह रहा है is A is a subset of B and second part कह रहा है what is the A union B. We know that according to their definition a set A is said to be subset of B if all the element of set A lie in the set B. So according to definition यहाँ हम देखेंगे since A and B have two element of A and these element lie in B means all the element of set A belong in set B. It means is it correct? So answer number 1 solution first. A is the subset of B because all the element of A lie in B. Because all the element of A lie in set B. Answer. Second, what is A union B? According to definition of union of sets, if A and B is the two sets, then the element of A and B collected together, then we will get the union of set A and B. So according to definition, the A union B, this is the answer for part 2. A union B. First we write the element of set A, B. Then collect the element through set B, that is A, B, C. Here A and B already taken, then just element only C. This is the A union B. Means A union B means the element of A union B is either in A or in B. तो या तो वो सेट ए में प्रेजेंट होगा या वो सेट बी में प्रेजेंट होगा, तभी हम उन दोनों सेट्स का यूनियन बनाएंगे। आइए एक और क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके जो है एक्सरसाइज 1.4 का ही है, एनसीईआरटी का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से यूनियन को आप और बेहतर तरीके से जो है समझ पाएंगे। अभी इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ दो सेट्स के यूनियन निकाला। अगर आपको दो से ज्यादा सेट दे दी जाए, more than two set, if we have more than two sets, three set, then how will find their union? Let's see. Question part 1. Find A union B. So A union B, set A is given here and this is the set number B. So A union B equals to listed the element in roster form 1 2 3 4 and in set B 3 4 already taken from A, so rest element 5 and 6. So this is the A union B. Second part, find out A union C. This is the set A and this is the set C, so their union A union C. So A union C equals to 1 2 3 4 and rest of the element through set C
5 6 7 8, 5 6 7 8. This is the answer. A union C means the element of A union C is either present in set A or in set C. वो किसी न किसी एक सेट में जरूर प्रेजेंट होगा वो एलिमेंट. B union C, the element of B collected from set B 3 4 5 6, 3 4 5 6, and element of C 5 6 7 8. Here 5 and 6 already present in set number B, therefore rest of the element through C 7 8, 7 8. Answer. This is the answer. Next, B union D. B union D. 3 4 5 6 are the element of B. 3 4 5 6, and element of D 7 8 9 10. 7 8 9 10. This is the B union D. And in next part, find out the A union B and union C. तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हम क्या करते हैं, A union B फाइंड कर लेंगे. यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द A union B, देन आफ्टर B union C. तो आइए देखिए, यहां पर हम लोगों ने A यूनियन B लिखे फाइंड किया है. दिस इज द, ये A यूनियन B हम लोगों ने फाइंड कर लिया है. और अब हमको इसका यूनियन निकालना है. किसके साथ निकालना है? C के साथ निकालना है. तो देखिए A यूनियन B निकल गया है और C के साथ आपको यूनियन निकालना है. तो इसका जो आंसर होगा देखिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन का पार्ट नंबर बी है. A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल्स टू. तो सबसे पहले वी राइट द ऑल एलिमेंट ऑफ A यूनियन B. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Then element of C which is not present in A element, A union B. अब C के हम लोग वो एलिमेंट लेंगे जो कि A यूनियन B में प्रेजेंट नहीं है. तो देखिए 5 यहाँ प्रेजेंट है, 6 यहाँ प्रेजेंट है. तो सेट C जो है, सेट C है ओनली 2 एलिमेंट्स 7 8 which is not present in A union B. तो यहाँ पर आएगा 7 and 8. आंसर. इस तरह से हम लोग A यूनियन B यूनियन C निकालेंगे. ऐसे ही आपको जो नेक्स्ट पार्ट है, 7th पार्ट है, यहाँ पे फाइंड करना है A यूनियन B यूनियन D. तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, A यूनियन B फाइंड कर लेंगे. तो यहाँ पर हम लोगों ने देखिए A यूनियन B फाइंड कर रखा है. आइए पार्ट 6 देखते हैं. पार्ट 6 में हमें फाइंड करना है A यूनियन B यूनियन D. A यूनियन B यूनियन D ये निकालना है. तो इसके लिए अब क्या करेंगे, हम देखिए A यूनियन B. तो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में A यूनियन B को फाइंड कर रखा हुआ है. तो हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, A यूनियन B की वैल्यू पुट कर लेंगे. A यूनियन B ये निकाला तो 1 2 3 4 5 6. अब इसका जो यूनियन है A यूनियन B का, इसका यूनियन हमें निकालना है D के साथ निकालना है. तो ये हमारा D सेट ये दिख दिया होगा 7 8 9 10. तो जो एलिमेंट बचा है यहाँ पे 7 8 9 10. आंसर. तो इस तरह से हम लोग यूनियन को फाइंड करते हैं. या 2 सेट का निकालना हो, 3 सेट का निकालना हो, नो प्रॉब्लम. आप क्या करेंगे, 3 सेट का निकालना है. फर्स्ट वी फाइंड द यूनियन ऑफ 2 सेट्स, देन यूनियन ऑफ 3 सेट. तो इस तरह से हम लोग यूनियन को निकालते हैं. तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद यूनियन और सबसेट और बेहतर तरह से समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, हम इंटरसेक्शन का लेंगे
और उसमें देखेंगे कि इंटरसेक्शन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है ये क्वेश्चन नंबर 6 है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको इंटरसेक्शन जो है और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते हैं। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए बी सी डी आर 4 सेट्स, फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी। ये सब आपको फाइंड करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन का जो हमने डिफिनेशन आपको बताया था पिछले वीडियो में, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स मींस इंटरसेक्शन ऑफ द सेट ए एंड बी इज द सेट इन विच वी सेलेक्ट द कॉमन एलिमेंट फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी का जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और वही जो सेट हमें मिलेगा दैट इज नोन एज इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए हम लोग सेट ए को देखेंगे और सेट बी को, और इनमें से वो एलिमेंट चूज करेंगे जो दोनों में बिलोंग कर रहा हो। ऐसा नहीं किसी एक सेट में बिलोंग कर रहा हो, हम उस एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे जो सेट ए में भी बिलोंग कर रहा हो और सेट बी में भी बिलोंग कर रहा हो, और वहां से वो कॉमन निकाल लेंगे हम। तो आइए फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, देखते हैं इसमें क्या मिलता है हमें। ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ये सेट ए है और ये सेट हमारा बी है। इसके एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11, और सेट बी जो दिया हुआ है 7, 9, 11, 13। तो इनका जो इंटरसेक्शन निकालना है इसमें देखिए कॉमन क्या है। तो देखिए कॉमन आपको 7, 9, 11 यहाँ भी प्रेजेंट है, 7, 9, 11, तो आपको मिल जाएगा 7, 9 और 11। तो इस तरह से हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिए। नाउ नेक्स्ट फाइंड बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए हम लोग वही प्रोसेस को रिपीट करेंगे कि सेट बी और सेट सी से जो भी एलिमेंट्स कॉमन हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बी इंटरसेक्शन सी, तो देखिए यहाँ पे बी और सी में कौन से एलिमेंट ऐसा है 11, 13, 11, 13, ये दोनों एलिमेंट दोनों सेट में प्रेजेंट हैं। तो 11 और ये हो गया 13। बी इंटरसेक्शन सी 11, 13 यहाँ भी प्रेजेंट है और 11, 13 यहाँ भी प्रेजेंट है। अगला है थर्ड क्वेश्चन, देखिए ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड ए इंटरसेक्शन सी, देन वी विल फाइंड ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो आइए पहले सॉल्व निकालते हैं ए इंटरसेक्शन सी। तो इसका जो सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन देखिए ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए हम वो एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे जो ए में भी प्रेजेंट हो और सी में प्रेजेंट हो, मींस वो दोनों में कॉमन आ रहा हो। देखिए यहाँ पर क्या है, ये ए है, तो 3, 5, 7, 9 यहाँ प्रेजेंट नहीं है, ओनली 11 यहाँ पर है और ये 11। ये 11 जो है सेट ए में भी प्रेजेंट है और सेट सी में भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब हुआ कि ए इंटरसेक्शन सी जो होगा ओनली वन सिंगल एलिमेंट 11। नाउ सी के साथ इंटरसेक्शन डी क्या है, तो ए इंटरसेक्शन सी निकाल लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो अब ए इंटरसेक्शन सी निकाल लिया है, अब इस सेट का हम डी के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे और देखेंगे कि डी के साथ इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट हमें मिल रहा है। तो
ए इंटरसेक्शन सी आपने निकाला है और डी आपके पास 15 और 17 है। तो देखिए 15 और 17 यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा। ए इंटरसेक्शन सी आपने निकाल लिया है, ए इंटरसेक्शन सी में आपको सिर्फ क्या मिला था, 11 मिला था, और जब इसका इंटरसेक्शन हम डी के साथ निकाल रहे हैं तो हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा। देखिए 15 और 17 है, यहाँ पर 11। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा तो ये एक दिस इज द एम्प्टी सेट, ये हमें मिलेगा यहाँ पर 5। वी राइट हियर एम्प्टी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है। देन वी विल राइट हियर एम्प्टी बिकॉज़ 5 रिप्रेजेंट एज ए एम्प्टी सेट। नेक्स्ट वन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी भी हम लोगों ने निकाला है, यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन निकाला है, तो ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा आपका 11। नेक्स्ट बी इंटरसेक्शन डी है, नेक्स्ट पार्ट में बी इंटरसेक्शन डी। देखिए बी आपका क्या है, 7 9 11 13 और डी है आपका 15 और 17। तो देखिए ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बी में भी प्रेजेंट है और डी में भी क्या है, प्रेजेंट है। तो बी आपका ये हो गया और सेट नंबर डी आपका ये है। यहाँ भी देखिए कोई भी एलिमेंट बी का जो है वो सेट डी में प्रेजेंट नहीं है। एक भी सिंगल एलिमेंट ऐसा नहीं है बी का जो सेट डी में प्रेजेंट हो। तो यहाँ भी बी इंटरसेक्शन सी जो मिलेगा हमको वो मिल जाएगा 5, मीन्स एम्प्टी सेट। नाउ नेक्स्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट। Sixth part, first we find B union C, then we will find A intersection B union C. So first B union C. अब यूनियन निकालना है, तो यूनियन निकालने के लिए एलिमेंट को क्या होना चाहिए, बी से भी प्रेजेंट होना चाहिए और सी में भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो ना फाइंड करते हैं बी यूनियन सी। तो ये सेट हमारा बी है। अब देखते हैं बी, और पहले क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट वी राइट द ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी। So write down 7 9 11 13. These are the element of set B. Now look set number C. 11 13 and 15 are the element of set C. So already here we write 13 and 11. Rest element 15. Write down 15. So this will be the B union C. इस प्रकार से हम लोगों ने बी यूनियन सी निकाल लिया। अब देखिए क्या करना है, इसमें बी यूनियन सी का जो है इंटरसेक्शन निकालना है, सेट ए के साथ निकालना है। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कि ये जो सेट निकाला है इस सेट का हमें इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, सेट ए के साथ। तो आइए देखते हैं 7 9 11 13 and 15 आर द एलिमेंट ऑफ बी यूनियन सी। क्या ये एलिमेंट हमारे सेट ए में प्रेजेंट है, चेक करिए। 7 9 11, देखिए 7 9 11 मींस ये वो एलिमेंट है जो सेट ए में भी प्रेजेंट है और सेट बी में भी प्रेजेंट है। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन वी सेलेक्ट दोज एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए एंड आल्सो प्रेजेंट इन सेट बी, यानी कि वो दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए। एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 7 9 11 7 9 11 यहाँ से हमें कॉमन मिलता है। 13 और 15 ये सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से हमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी मिलता है। तो ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे बी यूनियन सी निकाला हमने, इसके बाद इनका ए के साथ इंटरसेक्शन निकाला। अभी ये क्वेश्चन नंबर 6 था आपका एक्सरसाइज 1.4 का। अभी इसमें और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, इंटरसेक्शन बेस्ड हैं। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे आपको इंटरसेक्शन यूनियन के जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं उसमें गलती नहीं होगी, और जो डिफिनेशन है उसको आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि यूनियन क्या है और इंटरसेक्शन क्या है, दोनों में डिफरेंस। पार्ट देखा, उसे आपको यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। नेक्स्ट जो इसी का अगला पार्ट है, इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन को एक साथ कलेक्ट किया गया है और ज्वाइंट क्वेश्चन बनाया गया है, जिससे कि आप दोनों को अभी अलग अलग निकालना सीखे थे कि यूनियन निकालना है, इंटरसेक्शन। बट इन पार्ट ऑफ 9 and 10
वी टुगेदर फाइंड द इंटरसेक्शन एंड यूनियन। तो ये इसका एप्लीकेशन है। आइए देखते हैं। फर्स्ट ये 9 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 का ही 9 पार्ट है। फाइंड द ए इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी। तो आइए देखते हैं। इसको सॉल्व करने की जो मेथड है वो 3 पार्ट में सॉल्व होगा क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में हम लोग फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, देन in second part we will find B union C, and after that we collect the common element of these two sets. तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। सॉल्यूशन नंबर 9। फर्स्ट A इंटरसेक्शन B। देखिए सेट ए गिवन है और सेट बी है, तो कॉमन एलिमेंट क्या है? 7 9 11 7 9 11। ये एलिमेंट दोनों सेट्स में प्रेजेंट हैं। 7 9 11 ये हमारा इंटरसेक्शन आ गया। नेक्स्ट देखिए हमने बताया था आपको क्या निकालना होगा, बी यूनियन सी भी आपको निकालना पड़ेगा। आइए निकाल लीजिए बी यूनियन सी। यूनियन का मतलब होता है, हम बार बार बता चुके हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। सेट बी और सेट सी के जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम एक साथ एक सेट में ले लेते हैं। तो बी के लिए एलिमेंट है आपके पास 7 9 11 13। सी देखिए, यहाँ पर एक बात ध्यान देना होता है कि जो एलिमेंट हम बी के ले सेलेक्ट कर चुके हैं उनको रिपीट नहीं करेंगे। तो 11 13 वो बी में भी प्रेजेंट है, सी में भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर एक बार हम लोगों ने इनको सेलेक्ट कर लिया है 11 और 13 को, तो अब इनको दोबारा सेलेक्ट नहीं करेंगे, जो रेस्ट एलिमेंट होता है उसको लेंगे यहाँ से। तो 15 बचा हमारा। तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया सच ए बी यूनियन सी। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द सेक्शन जिसमें फाइनल रिजल्ट हमको चाहिए। तो फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए आपको? ए इंटरसेक्शन बी, और इनका इंटरसेक्शन निकालना है आपको। किसके साथ निकालना है? बी यूनियन सी के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास एक सेट ये है ए इंटरसेक्शन बी और दूसरा सेट है बी यूनियन सी। इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन चाहिए आपको, मींस दोज एलिमेंट विच इज कॉमन इन बोथ द सेट्स। आइए देखते हैं, लेट्स सी वो कौन से एलिमेंट है जो इन दोनों सेट्स में कॉमन है। देखिए यहाँ पे 7 9 11 7 9 11 ये क्या है? दोनों सेट्स में कॉमन है। तो ये सेट्स आपका बन जाएगा 7 9 11 और यही आपका क्या होगा? आंसर। बहुत सिंपल था, इस पार्ट को सॉल्व किया। नेक्स्ट पार्ट भी सिमिलरली थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे देखिए क्या है नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 10 जो है हमारा ए यूनियन डी। तो फर्स्ट वी फाइंड ए यूनियन डी। ए यूनियन डी। अब बार बार हम डिफरेंशियल आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि कई बार डिफरेंशियल बता चुके हैं आपको। तो डायरेक्टली आइए फाइंड करते हैं ए यूनियन डी। ये 3 5 7 9 11 3 5 7 9 11। क्या किया? ए के जितने भी एलिमेंट थे उनको पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने का मतलब यहाँ सेंस है कलेक्शन ऑफ 10 एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब क्या है? डी के साथ देखना है। डी के एलिमेंट क्या है? 15 17। तो ये हो जाएगा 15 17। इस तरह से हमने ए यूनियन डी निकाला। अब देखिए यहाँ पर आपको बी यूनियन सी भी चाहिए। तो आइए फाइंड कर लेते हैं बी यूनियन सी। बी यूनियन सी देखिए क्या है? 7 9 11 30 और सी में आप आएंगे तो देखिए 11 और 13 ऑलरेडी हम प्रेजेंट है इस सेट में, सिर्फ आपके पास बचेगा 15। तो ये दो पार्ट आपने पहले फाइंड आउट कर लिया। अब फाइनल पार्ट में आप क्या करेंगे? इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। देयरफॉर ए यूनियन डी इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी।
यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है और सेट आपके पास ये है। अब इन सेट से आपका कोई मतलब नहीं है, लीव दिस। अब आपको जो एलिमेंट लेना है वो इन दो सेट से लेना है, इनसे इंटरसेक्शन लेना। कभी भी गलती से आप इधर से एलिमेंट जो है कॉमन मत लीजिएगा। तो अब ये ए यूनियन डी आपके पास है और बी यूनियन सी है। तो देखिए कॉमन एलिमेंट क्या है आपके पास, 7 9 11 और 13 देखिए नहीं है, 15 है यहाँ पे। फिर तो ये आपका निकल गया ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। आइए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का। थोड़ा सा डिफरेंट इस क्वेश्चन में है। अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 5, 6 या 1, 2, उसमें जो क्वेश्चन पे सेट गिवन थे, ऑल द सेट्स गिवन इन द रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, बट इन क्वेश्चन नंबर 7 गिवन सेट्स एज अ फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। ये सारे पार्ट्स सेट दिए हैं, सेट ए बी सी डी, ऑल दिस सेट्स आर गिवन इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पे थोड़ी हो सकती हो आपको दिक्कत आ जाए कि सर इसमें आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, सर कॉमन कैसे लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बिल्कुल सिंपल मेथड है। फर्स्ट वी राइट ऑल दिस सेट इनटू रोस्टर फॉर्म। इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म से हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, जिसे वी ऑलरेडी नोन एज ए टेबुलर फॉर्म। तो आइए सबसे पहले सेट ए बी सी डी को हम लोग टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। और टेबुलर फॉर्म में जब आप कन्वर्ट कर लेंगे, उस सिचुएशन में आपको ये इंटरसेक्शन निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा। सेट ए कह रहा x इज एलिमेंट सच दैट इज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का सेट है ये 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये आपका हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। b is a set and x is an even natural number। तो ये हमारा जो सेट b है वो इवन नेचुरल नंबर का सेट है, मींस 2 4 6 8 एंड सो ऑन। c x, इसका जो एलिमेंट है वो क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या जाएगा आपका 3 5 7 9 11। इस तरह से आपके ये सारे ऑड नंबर हो जाएंगे। 11 डी सेक्शन कह रहा x इज ए प्राइम नंबर। आपको मालूम होगा कि दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। तो देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कन्वर्ट दिस सेट D into roster form। So set D is equals to 1। अब वो नंबर कौन से हैं जो all those number divisible by itself, जो सिर्फ खुद से डिविजिबल होते हैं, 1 2 3 5 7 11 13 17 19। ये सब हमारे क्या है, प्राइम नंबर है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया है, इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको क्वेश्चन ये बिल्कुल इजी हो गया। पहला पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो आइए निकाल लीजिए ए इंटरसेक्शन बी। देखिए क्या करना है आपको इंटरसेक्शन बी में, वो एलिमेंट जो कॉमन हो यहाँ पे। तो 2 कॉमन हो सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है 2। तो कॉमन एलिमेंट आप सेलेक्ट कर लेंगे 2 4 6 8। इस तरह से आपको ये इंटरसेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है, सेट ए जो है वो नेचुरल नंबर है और सेट बी जो है हमारा क्या है, इवन नेचुरल नंबर। इट मीन, तो यहाँ पर एक हम इंपॉर्टेंट बता रहे थे कि देखिए जो सेट ए है वो नेचुरल नंबर का सेट है और सेट बी जो है इवन नेचुरल नंबर है। तो जब भी हम नेचुरल, आपको समझ आई होगी यहाँ पे कि
सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हमने, और कन्वर्ट करके हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया, और ये ए इंटरसेक्शन बी जो निकला है ये सेट बी के इक्वल हो गया। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, देखिए ए इंटरसेक्शन सी ये नेचुरल नंबर का सेट है और जो सी है हमारा वो ऑड नंबर का है। तो जब नेचुरल नंबर के सेट में से ऑड नंबर हमने सेलेक्ट कर लिया तो बचेगा क्या हमारे पास, वही इंटरसेक्शन होगा, यानी कि इनका जो कॉमन देखिए, तो अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, ये कॉमन हो गया आपका। इसके बाद कॉमन क्या मिलेगा आपको, 5 यहाँ भी प्रेजेंट रहेगा, 5 इसमें भी रहेगा, 7 यहाँ प्रेजेंट है तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में भी रहेगा। तो ये सारे एलिमेंट आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर में प्रेजेंट मिलेंगे। तो 3, इसके बाद आपका क्या हो गया 5, 7 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपको ये सारे के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। ऐसे लिखे बी इंटरसेक्शन सी। अब आपको इनमें देखना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये आपका जो है सेट ऑफ क्या है, इवन नंबर है, ये सेट ऑफ ऑड नंबर। तो सेट ऑफ इवन नंबर और सेट ऑफ ऑड नंबर में एलिमेंट कॉमन मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, कुछ एलिमेंट आपको हो सकता है मिल सकते हैं, जैसे 12 है, अगर आप इसको आगे ले जाएंगे तो 12 क्या है, 12 मल्टीपल ऑफ 3 है, लेकिन वो किस में आएगा, वो इवन नंबर में आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब सेट ऑफ इवन नंबर और ऑड नंबर की बात करेंगे तो यहाँ जो एलिमेंट होगा वो 5 होगा। क्या मिलेगा हमको, 5। लास्ट है सी इंटरसेक्शन डी। तो सी इंटरसेक्शन डी देखिए आपको तमाम एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इस तरह से आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, 3, 5, 7, 11। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ से आप लोग जो है कुछ और बेसिक अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब तक आपको हमने यूनियन और इंटरसेक्शन पे जो भी क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज 1.4 में वो कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किया है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। दिस क्वेश्चन इज टोटली बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ टू सेट। वी ऑलरेडी नो दैट द डिफरेंस ऑफ टू सेट इज अ सेट इन विच the element of set A is not present in another set B। यानी कि वो एलिमेंट जो सेट A में तो प्रेजेंट होता है लेकिन B में प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो हमारा क्या होता है, कॉमन एलिमेंट होता है। सॉरी, इसे हम कहेंगे वो कॉमन ना कहकर इसको, बल्कि उनका ये कहिए डिफरेंस कहिए, सेट A और सेट B का डिफरेंस। तो यहाँ पे कॉमन वर्ड यूज करने से बेटर होगा कि डिफरेंस आप यूज करेंगे। मीन्स वो ए में तो प्रेजेंट है लेकिन वो बी में प्रेजेंट नहीं है, वही उसका क्या है, डिफरेंस है। यानी सेट ए में है और सेट बी में जो है प्रेजेंट वो नहीं है। क्या हुआ, ए माइनस बी, हाँ ठीक भाई है, 3 ए की वो एलिमेंट जो बी में ना हो प्रेजेंट हो, बस। और ए माइनस सी, ए की वो एलिमेंट जो सी में ना हो, ए में हो सी में ना हो, हाँ भाई सी ये में ना बताओ। हो, हाँ ठीक है। और ए माइनस डी, ए की वो एलिमेंट जो डी में ना हो। क्लियर तो बता रहे, सही तो बता रहे। और कोई डिफरेंशिएशन नहीं बता सकते हैं आप, तो बस वही है जो यही है कि आपकी जो ऑल द एलिमेंट्स हु इज प्रेजेंट इन ए बट नॉट प्रेजेंट इन बी, यही है ना। हाँ ये ए माइनस बी है। मैंने लगा के साथ कुछ और डिफरेंशिएशन दिखा हो तो देखें, बताएं फिर। होती हो तो हम जानते हैं उसकी। ये नहीं, ये तो है तो ओके। क्या सही तो बताया आपने। 3, 9, 15, 18, 21 इसमें है ही नहीं वो एलिमेंट, राइट है। बोलेंगे बाकी इसी तरह एज इट इज जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। ये ऐसे पहले लिख दीजिए, फिर बाद में कह दीजिए दिस इज इक्वल टू, ये कर दीजिए। निकाल देते हैं 4 मिनट रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ 4 मिनट और लास्ट में थैंक यू बोल दिया करिए बस। एक लास्ट बंद पूरा नहीं, रोके रुके, नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन और करा दे हाँ, ठीक है। एक्सरसाइज का, वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब वो जो है अच्छा क्या है, इसी तरह ट्रू एंड फॉल्स वाला है। इसमें दिखाना है
इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। पहला कह रहा है सेट ए है और सेट बी है, आर डिसजॉइंट सेट्स। आपको बताना है क्या ये ज्वाइंट सेट है या डिसजॉइंट। तो इनको बताने के लिए आपको पहले डेफिनेशन पता होना चाहिए कि कोई भी सेट जो है टू सेट्स ए एंड सेट बी कब ज्वाइंट होगा। इफ एनी सिंगल एलिमेंट बी प्रेजेंट इन बोथ द सेट देन सेट नेवर विल बी डिसजॉइंट। जो अगर एलिमेंट जो है ऑलवेज प्रेजेंट इन आइदर ए और बी देन इट इज द ज्वाइंट सेट। अगर वो प्रेजेंट है तब तो क्या हो जाएगा ज्वाइंट। यानी कि अगर देखिए यहाँ पे जैसे ये 3 यहाँ पे देखिए प्रेजेंट है दोनों में, तो ये सेट क्या हो जाएगा ज्वाइंट हो जाएगा, डिसज्वाइंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इंटरसेक्शन निकल गया यहाँ पे, इन दोनों सेट का क्या है ये इंटरसेक्शन हो गया, तो ये ज्वाइंट सेट होगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा और डिसज्वाइंट से ये ट्रू हो जाएगा। सॉरी हाँ, ये डिसज्वाइंट सेट्स है तो क्या होगा ये फॉल्स होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि डिसज्वाइंट है, लेकिन हम लोग क्या अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं कि ज्वाइंट है। 3 और 3 दोनों में क्या है प्रेजेंट है, तो ज्वाइंट हुआ ना, तो डिसज्वाइंट नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा, ये तो फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू नहीं है। दूसरा, ये 2 सेट्स दिए हुए, अब यहाँ देखिए सारे एलिमेंट्स ए यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, तो ये दोनों क्या है ज्वाइंट है, लेकिन स्टेटमेंट कह रहा है कि डिसज्वाइंट है। तो डिसज्वाइंट कहाँ से होगा? ये कोई एंगल आपको दिख रहा है कि कोई एलिमेंट ऐसा है जो कि ज्वाइंट ना हो, तो यहाँ पे ये एलिमेंट देखिए ज्वाइंट है, ये एलिमेंट ए और ये क्या है ये ज्वाइंट है, तो ये भी क्या जाएगा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा आपका। तीसरा देखिए यहाँ पे इसमें एक भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, तो ये एलिमेंट क्या कहलाएंगे, ये जो सेट्स, अगर इसको हम सेट ए ले लें, दिस इज द सेट ए एंड दिस इज द सेट बी, देन ए एंड बी आर डिसज्वाइंट सेट। यही एक ऐसा इसमें ऑप्शन आपको मिला है जिसमें आप कह सकते हैं एग्जैक्टली ये है डिसज्वाइंट सेट। क्यों? बिकॉज नन ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स। कोई एलिमेंट प्रेजेंट है देखिए 2 6 नहीं है, तो ये ट्रू है आपका स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या है आपका ट्रू, यानी कि ये दोनों सेट्स क्या है डिसज्वाइंट सेट्स हैं। लास्ट एग्जांपल देखिए 2 6 10 3 7 11, यहाँ भी सेम सिचुएशन बनी हुई है, कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है किसी भी, तो हम कह सकते हैं ये क्या है हमारे डिसज्वाइंट सेट। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका ट्रू है, ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। तो इस प्रकार से आप डिसज्वाइंट सेट को फाइंड कर सकते हैं।